آئے ہم کتاب مقدس کی طرف بڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں کلام کی تلاوت کے لیے۔ استثنا کی کتاب 19واں باب اس کی 5 اور 6 آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری دانائی بھی ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی بھی ہے، اور دنیا کا کوئی کالج، کوئی نالج گناہ کے تسلط کو نہیں توڑتا۔ گناہ کا تسلط جب بھی ٹوٹتا ہے وہ خدا کے کلام سے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، فلاں کا کلام، فلاں کا کلام، اقبال کا کلام، پر وہ سارے کلام کبھی انسان کو گناہ سے نہیں نکال سکتے۔ گناہ سے نکلنے کے لیے اگر کوئی کلام ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ کئی دفعہ ہم انسانوں کے کلام کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، بڑی ودیا اتم گال کر چڑی جناب کی کمال ہو گئے، پر سب سے کمال، ہر کمال کی انتہا خدا کا کلام ہے۔ سو خدا کے کلام میں یہ مرکوم ہے، پھر فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے۔ اور جس کسی نے پاکستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں بزرگ موسیٰ کو احکام دیتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے کلیسیا کے لیے، قوم کے لیے، اور وہاں پر ایک حکم یہ بھی آیا کہ تو حکام سے کہنا، یعنی حاکموں سے جو لیڈ کرتے ہیں، رہنماؤں سے، کہ اگر کسی شخص نے گھر بنایا ہے پر اس گھر کو ابھی مخصوص نہیں کیا تو وہ جنگ میں نہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ میں رہ جائے اور اس کے بنائے ہوئے گھر کو کوئی دوسرا مخصوص کرے۔ اس کلام میں، اس حکم میں خدا کا مقصد صرف عمارت نہیں، اس حکم میں خدا کا مقصد قوم کے لیے صرف عمارت اور بلڈنگ میں دلچسپی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمارت اور بلڈنگ ہو تو خدا کہندا جڑا مرضی مخصوص کر لے، تو جنگ کر، کار ہی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی دلچسپی عمارت میں نہیں ہے، خدا کی دلچسپی 5 مرلے کے گھر میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی دلچسپی اس گھر کو بنانے والے میں ہے۔ خدا دلچسپی اس گھر کے اندر جو گھرانہ ہے، جو بنانے والا ہے، اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ گھر کو بنانے والا مخصوص کرنے سے پہلے اگر وہ جنگ میں رہ گیا اور اس کے گھر کو کسی اور نے مخصوص کر لیا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حکام کو یہ کہہ دیا گیا کہ حکم کرو کہ ایسا شخص ہاتھ کھڑا کرے اگر اس نے گھر بنایا ہے اور ابھی تک گھر کو مخصوص نہیں کیا ہے تو جنگ سے اسے واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گھر کو، جس گھر کو اس نے تعمیر کیا ہے، اس بلڈنگ کو، اس گھر کو مخصوص کرے۔ مخصوص کا مطلب ہے خاص کرنا یا نامزد کرنا، یعنی اس گھر کو جسے اس نے بنایا ہے پہلے اسے نامزد کرے کہ یہ گھر ہمیشہ خدا کے جلال اور اس کی بزرگی کے لیے استعمال ہوتا رہے گا۔ اس گھر کو نامزد کرے، اسے خاص ٹھہرائے کہ یہ میری محنت سے اور زمین پر رہ کرے خدا جو تو نے مجھے برکت دی ہے، یہ محض بلڈنگ نہیں ہے، یہ محض گھر نہیں ہے، یہ محض عمارت نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایماندار رہتے ہیں، جہاں مسیحی رہتے ہیں، جہاں یسوع مسیح پر ایمان کے دعوے دار رہتے ہیں، وہ صرف بلڈنگ نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر خدا کی موجودگی ہوتی ہے۔
इसलिए उसे नामजद करना, उसे मखसूस करना, शुक्रगुजारी करना। और शुक्रगुजारी का मतलब है किसी के किए गए एहसान के बदले उसकी तारीफ करना, किए गए एहसान के लिए उसका शुक्रगुजार होना। जिन्हें कोई बंदा साडे काम आ जाए, कोई छोटा मोटा बड़ा या छोटा, असी सारी जिंदगी गली चो लंघदियां शुक्रिया अदा करना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसने कि भाई जी ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ है, मैं ਇਹਦਾ बड़ा शुक्रगुजार हाँ, मेरा काम सी इन्हें हल किया है, मेरा कोई मसला सी इन्हें हल किया है। बच्चों ਨੂੰ भी कह के जाने कि शुक्रगुजार रहना है, बच्चों को भी पाबंद करके जाने कि शुक्रगुजार है। पर जब खुदा बरकत देता है, जब खुदा घर को बनाता है, जब खुदा आपको जमीन के वारिस ठहराता है, तो फिर किस कदर जरूरी है उसके किए गए एहसान के लिए उसका शुक्र अदा करना, उसके किए गए एहसान का नस्लों को, पुश्तों को बताना और घर को मखसूस करने का मतलब और मकसद यह था कि अपनी नस्ल को, अपनी पुश्त को और इस घर में रहने वाले हर फर्द को इस बात की ताकीद करना कि वो जिंदा खुदा है जो मौजज़ात की कुदरत रखता है, वो रब्बुल अफ़वाज है जिसका हमें शुक्र अदा करना है, क्योंकि उसने हमें इस घर का वारिस ठहराया है। इसलिए नहायत जरूरी है खुदा की शुक्रगुजारी करना, नहायत जरूरी है। खुदा की दिलचस्पी उस शख्स में है, खुदा की दिलचस्पी ईमानदारों में है। खुदा चाहता है कि ईमानदार अपनी नस्लों के लिए, अपनी पुश्तों के लिए ऐसी शुक्रगुजारी किया करें, ऐसी ऐसी रवायात कायम करें कि बच्चों को, नस्लों को इस बात का इल्म हो कि हमारी शादी हो, सालगिरह हो या हम घर बनाए, हम सिर्फ उसी खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके किए गए एहसानात के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए आज बादस दोपहर इस खानदान, इस घराने ने इस बात को ठहराया। कलाम में लिखा है कि नूह ने अपने घराने के लिए क्या बनाई? कश्ती। अपने घराने के लिए उसने कश्ती बनाई। मखसूसियत का, शुक्रगुजारी का, घरों को मखसूस करने का मकसद यह है कि यह वो जगह होगी जहां हम अपनी नस्लों के लिए, पुश्तों के लिए वो कश्ती बनाएंगे जो नूह वाली नहीं, बल्कि ऐसी बनाएंगे जो जमीन से लेकर आसमान तक हमारी पुश्तों को वारिस ठहराने वाली हो। और उसके लिए अमाल की किताब में लिखा है कि इस्राएल का सारा घराना जान ले कि जिस मसीह को, जिस यस्सु मसीह को तुमने मसलूब किया है, खुदा ने उसे खुदावन और मसीह भी ठहराया है। मखसूस करने का मकसद यह है कि हमारे घरों में, अगर हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घरों के अंदर कोई अहम तरीन चीज है जो हमारी नस्लों को, पुश्तों को आसमान की बादशाही का वारिस ठहरा सकती है, तो वो यस्सु मसीह का नाम है, वो मुजस्सम कलाम है। कलाम में लिखा है बनी इस्राएल ने, जो 2.5 कबीले इस तरफ रह गए, उन्होंने एक मज़बा खड़ा किया, एक लाट खड़ी की, और बाकी कबीले आए कि क्या तुम अलग से कोई हैकल बना रहे हो, अलग से मज़बा बना रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, अलग तो नहीं बनाना, इबादत के लिए इस लाट को खड़ा करने का मकसद अलग हैकल बनाना नहीं है, बल्कि इसको खड़ा करने का मकसद यह है कि जब हमारी नस्ल, जब हमारे लोग, जब हमारे बच्चे इस पार आएंगे, तो तुम्हारे बच्चे कहीं हमारे बच्चों के जहन से खुदा का खौफ दूर ना कर दें कि इस्राएल के खुदा में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए यह लाट खड़ी की है, इसलिए यह निशान खड़ा किया है कि कल को हमारी नस्ल इस बात को याद रखे और तुम्हारी नस्लों को भी इस बात का एहसास रहे कि इस्राएल के खुदा में हमारा हिस्सा है। आज हम अपने घरों में
किस तरह के निशान खड़े करते हैं कि नस्लों के अंदर खुदा का खौफ, इस्राएल के खुदा का खौफ, यीशु मसीह की निजात का जिक्र रहे, एहसास रहे। और उसके लिए नहायत जरूरी है अपने घरों के अंदर ऐसे निशान, ऐसी रवायात, ऐसी शुक्रगुजारी, ऐसी इबादत, ऐसी मखसूसियत हो जिससे हमारे बच्चों के अंदर ये एहसास हो कि अगर हमें किसी को अव्वलीन तरजीह देनी है तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए अहकाम से कहा गया कि ऐसा शख्स वापिस चला जाए, ऐसा शख्स जंग में ना जाए जिसने घर बनाया है पर उस घर को मखसूस नहीं किया है। इसलिए खुदा सिर्फ इमारत में नहीं, खुदा मुझ में और आप में दिलचस्पी रखता है, उस घर में रहने वाली जिंदगियों से दिलचस्पी रखता है, उस घर में रहने वाले इंसानों में दिलचस्पी रखता है, ताकि वो जान सके, इस बात का एहसास हो। जिस तरह आज सब रिश्तेदारों अजीजों को बुलाया गया है, हर बंदे को पता है कि कादली इबादत है। आज भाई काशफ ने कार बनाया, पर यह सिर्फ इमारत नहीं, आज से यह सिर्फ घर नहीं, आज से सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, बल्कि आज से ये खुदा की मौजूदगी का एहसास ठहरे। हम मसीही घरानों में, बच्चों में, बेटियों में, बेटों में, नस्लों में तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बच्चों को यह एहसास नहीं दिला पाते कि यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं, इमारत नहीं है, बल्कि यहां खुदा की मौजूदगी है। जिस तरह खुदा ने कहा कि मिस्र में अंधेरा होगा पर जश्न के इलाके में कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। जगह को मखसूस करने का मकसद यह है कि ऐसी वो सारी नापाक तस्वीरें, तारीकी की कुफ्तें जो खानदान घराने की खुशहाली, बहाली और तरक्की के खिलाफ हैं, जो इनके आराम और सुकून के खिलाफ हैं, जो इनके इत्मीनान के खिलाफ हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। मखसूस करने का मकसद यह है कि आसे पासे जो मर्जी हो पर यहां पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, क्योंकि ये घर खुदा के जलाल के लिए है, ये जिंदगियां खुदा के जलाल के लिए। इसलिए जा पहले उसे मखसूस कर, जा पहले शुक्रगुजारी कर। शुक्रगुजारी दे मतलब नहीं कि दो चार गीत गाने ने, दो पादरी सदने ने ते रोटी खानी है तो बस कम गया। ये यादगारी की इबादत होती है, इसकी यादगारी आसमान तक पहुंचती है। ये महज वक्त गुजारने के लिए नहीं। कई शुक्रगुजारी बड़ी वड्डी कर देने ते बैठे देखते सराहने ही रहंदे ने, इबादत नहीं आउंदे। भाई साहब तुसी करो, तुसी इबादत करो, मैं इत्थे ध्यान रखना। इसका मतलब ये आम इबादत नहीं है, ये संजीदा इबादत है, ये संजीदा कुर्बानी है, ये खुदा के हजूर यादगारी के तौर पर पेश करने वाली कुर्बानी है। ये यादगारी के तौर पर है कि खुदा तूने मुझे ये फजल दिया और तेरी फजल की बदौलत मैंने इस बिल्डिंग को तैयार किया है। अब ये घर तब ठहरेगा जब इसमें घराना आएगा, और घराना तब पूरा होगा जब तेरी हजूरी घराने के साथ होगी, क्योंकि खुदा की हजूरी के बगैर हमारे घराने मुकम्मल नहीं होते हैं। इसलिए खुदा ने उसे ये कहा कि उनको वापस भेज दे, ताकि वो पहले मखसूस करें, नामजद करें, उसे खास ठहराएं कि ये खास जगह है। ये नामजद किया जाए कि ये मैंने मखसूस कर दिया है, क्योंकि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है। आज से ये घर, ये बिल्डिंग, ये सिर्फ इमारत नहीं जो इससे पहले ये ईंटों से बनाई गई है। आज के बाद ये एक घर है, एक घराना है, और इसमें रहने वालों के लिए नसीहत ये है, रहने वालों के लिए कलाम ये है कि अब यहां पर
कोई नापाक तसीर तारीकी की कुव्वत जो आपकी खुशहाली और बहाली के खिलाफ है नहीं रहेगी। इसलिए पुराने अहदनामे में काहिनों को बुलाया जाता, वो मुलाहिजा करते, घर को बरकत देते, घर को मखसूस करते। और आज भी ये नहायत जरूरी है कि खानदान अपनी उस बिल्डिंग को, उस घर को, उस इमारत को इस बात के लिए मखसूस करें कि ये सिर्फ एक नुक्कर च खुदा दी हजूरी नहीं। एडी वड्डा घर बना के आंदे ने पादरी साहब ए नुक्कर जेड़ी ना मखसूस की थी, अच्छी बात है दुआ के लिए, पर इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं कि सिर्फ उस नुक्कर च खुदा होवे ते बाकी सारे घर च जो मर्जी पिया होवे, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया घर को मखसूस करना, नुक्कर नू नहीं। ए नुकरा मखसूस करदे सन जेड़ा दिन ऐस नुक्कर च ऐ ही रहन दियो ते बाकी सारा घर तुहाडा है, ए नुक्कर नू नहीं छेड़ना। कई दफा कई नस्लां लोग घर बनाने होंदे ने ए नुक्कर नहीं छेड़नी, दादा कह गया। पर नए अहदनामा में नुकरा मखसूस नहीं, पूरे का पूरा घर नुकरा मखसूस नहीं, बल्कि घराने का हर एक फर्द, ताकि जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। कोई नापाक तसीर तरीकी की कुव्वत कैसे नुक्कर से नहीं रहेगी। जहां पर आपके कदम पड़ेंगे वहीं पर मैं वो जगह आपको दे दूंगा, और वहां पर किसी तरीकी की कुव्वत का कब्जा नहीं रहेगा, बल्कि वो घर खुदा के जलाल के लिए मखसूस है। क्योंकि जब घर के अंदर फिरने वाला, रहने वाला खुदा के लिए मखसूस है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हमारे इमारतों की सिर्फ एक नुक्कर, एक कोना मखसूस हो। फौजी हुकाम हुक्म दे ऐसे शख्स को वापस भेज दे कि पहले वो जाए और अपने घर की एक एक चीज को, पूरे घर को खुदा के जलाल के लिए मखसूस करे, ताकि वो इमारत न रहे बल्कि घर और घराना ठहर जाए। और मैं घर में हर एक चीज को बरकत दूंगा, और आपको कोनों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको नुकरों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा घर खुदा के नूर के सबब से चमकेगा, और कोई तरीके की कुव्वत आपकी खुशहाली, बहाली और तरक्की के खिलाफ नहीं हो सकती। खुदा जो सानू बरकत देने ते कादर है, खुदा बरकत देना चाहता है कि दुनिया च है खुदा दी बरकत नू पलट सके। कोई सियाना ऐसा ज़हन चाहता है कि नहीं, एक है कोई सियाना, जब खुदा मुझे और आपको बरकत देने का कसरत कर ले, इरादा कर ले और कहे कि मैं यीशु मसीह में तुम्हें बरकत दूंगा, तो फिर दुनिया च कोई सियाना नहीं जेड़ा साडी बरकत नू रिटर्न कर सके, रिवर्स कर सके। एक ही सियाना बंदा मैं दुनिया च वेख्या है, बलाम। उन्हें बुलाया गया कि इस घराने ते, इसराइल के घराने ते लानत कर। बुलाया गया ना, मजबा लगा, पूरा तरतीब बनाई गई, बैल कुर्बानी लिए रखा गया, बड़े जाहो जलाल ना खलोता और कहने लगा जिसे खुदा बरकत दे मैं उसे कैसे लानत करूं। बादशाह ने क्या, सियाणिया तेनू अपने लिए बुलाया है, मैंने अपने लिए बुलाया है कि इस खानदान पर, इस घराने पर जो मिस्र से निकल कर आए, इस पर लानत कर। उन्हें कहा एक करी होर कुर्बानी बनाने, शायद कोई गल बन जाए। फिर उस तरह कुर्बानी चुनी, फिर खलोता जाहो जलाल ना कहने लगा जिसे खुदा बरकत दे उस पर कौन लानत करे। उन्हें फिर कहा कि बुजुर्गो अपने लिए सद्या है, तवीत पुठे ना पाई जाओ, अपने लिए सद्या है। तीसरी बारी फिर, तीसरी बारी भी खलोता कहने लगा जिसे खुदा बरकत दे उसे कौन लानत करे। अगर खुदा आपके घराने को बरकत दे सकता है तो दुनिया में कोई सियाना नहीं जो तुम्हारी बरकत नू लानत च बदल सके। कोई ऐसी शख्सियत नहीं। भले लोग आपसे कहें लगता थोड़ा कारोबार किसे बने, थोड़ी है, कोई नहीं। अगर घर खुदा के जलाल के लिए मखसूस है तो घर का हर कोना खुदा के जलाल के लिए है। किसी सियाने के अंदर जुर्रत नहीं कि वो मेरे घर के किसी कोने में अपना नाकिस इल्म रख सके, क्योंकि इस घर के अंदर नाकिस इल्म नहीं, कामिल कलाम है, मुजस्सम कलाम है, यीशु नाम है, तो हर काना उसके जलाल के लिए मखसूस है।
किसी सियाने दे अंदर जुरत नहीं कि आपके घराने की किसी बरकत को रोक सके, आपके घर की किसी बरकत को रोक सके। सारा कार जो खुदा दे जलाल ਲਈ मखसूस है तो सियाना किवें किसी नुक्कर च दब सकता है। इसलिए उसने कहा था जा पहले घर मखसूस कर ताकि कोई सियाना तेरे कार पे कब्जा ना कर सके। अपने घर को मखसूस कर, एक कोने को नहीं पूरे घर को, ताकि मैं वहां पर रहूंगा, तू दुबई रवे जिथे मर्जी रवे पर मैं उत्थे ही रहूंगा। हालेलुया, मैं वहीं पर रहूंगा, मेरा जलाल मेरा रोब वहां पर रहेगा। और जिस तरह इस्राएलियों का रोब मिस्रियों पर था, मैं घराने का रोब तरीकी की कुफ्तों पर बिठा दूंगा। मैं तरीकी की कुफ्तों पर उस रोब को ठहरा दूंगा कि वो गली चो गुजर जानिया कि इधर नहीं जाना। पर उसके लिए शर्त है कि घर को, घराने को इस बात के लिए मखसूस किया जाए। एक हवाला देखते हैं, दूसरा सैमुएल 7वां बाब, मैं उसकी 25वीं आयत से पढ़ूंगा। और अब तू है खुदामंद खुदा, उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे। ये मनाजात सन मखसूसियत ले, सदा के लिए कायम कर दे, चंद दिना लिए नहीं। और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर, और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए कि रब्बुल फौज इस्राएल का खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाए। कह कह कर, कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए। जोर देने का मकसद यह है कि तेरे अलावा और कोई इस घर में बड़ाई के लायक नहीं ठहरेगा, तुझसे बढ़कर और कोई नहीं होगा। हमारे घर में, हमारे घराने में अगर अव्वलीन तरजीह दी जाएगी तो वो कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाएगी, तेरी शुक्रगुजारी की जाएगी, क्योंकि तूने यार रब्बुल अफवाज इस्राएल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे बंदे के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ऐ मालिक खुदावन तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर। ते जे कोई घर दी मखसूसियत करवाई ना, घर खुदा के जलाल के लिए, लोग घर के खुदा के लिए मखसूस ही ना हो, तो कैसे? उसने कहा मंजूर कर, और वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ऐ मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही नजात से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे, तेरे रूबरू पायदार रहे। ये सिर्फ जमीन तक जिंदगी गुजारन दी बरकत नहीं, तेरे रूबरू, यानी जमीन पर रुखसत होने के बावजूद भी मैं तेरे रूबरू रहूं। आसमान की बादशाही में खुदा के तख्त के सामने भी मैं उसी तरह मेरा घराना मौजूद रहे। उसके लिए जरूरी है अपने आप को और अपने घर को इस बात के लिए मखसूस करना। यह नहायत जरूरी अमल है, घर को, अपने आप को मखसूस करना। उसी तरह नहायत जरूरी है इस बात के लिए, अपने घराने के लिए अपनी चीजों को समझना। इसे कभी मामूली मत समझे, पर एक गल ही करेंगे जिन्ना पहलू अपना आप खुदा लिए मखसूस किया है, उन्होंने लिए जरूरी गल है। तो कई दो छो जी ये केड़ियां गल्लां ने, रोटी खानी है खाना पकाओ तो चाहिए साडा इबादत ना की तलक, ये एवं गल्लां ही ने। खुदा दा शुक्र है, कई आंदे ने इन्ने मकान बना छड़े ने, साडा ते सानू ते कदी कुछ नहीं होया। ये सेंसिटिव बात है, ये यादगारी की बात है, ये उनके लिए है जो पहले अपने आप को मखसूस करते हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो अपने घरों को, घरानों को इस बात के लिए मखसूस करे। एवं ही नहीं कह देता कि हुकाम हुक्म करे ऐसा शख्स वापस लौट जाए, ऐसा शख्स दोबारा जंग में ना आए जब तक वो अपने घर को मखसूस ना कर दे, क्योंकि उसके बाद वो जंग में होगा पर उसकी जंग उसके घर में मैं लड़ूंगा।
وہ قوم کے لیے لڑے گا اور اس کے خاندان اس کے گھرانے میں اس کی جنگ میں لڑوں گا. اس لیے ضرور ہے کہ پہلے یہ جائے, پہلے مجھے یہ بادشاہ قبول کرے, پہلے اس گھر کا سربراہ مجھے ٹھہرائے, پہلے روح القدس کو اس گھر کو اس کی حضوری میں دے اور پھر وہ آئے. اس لیے سدا میرا گھرانہ تیرے روبرو پائیدار رہے گا, میرے بچے تیری حضوری میں رہیں گے. اس لیے نہایت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا, پہلے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرنا, پہلے اپنے آپ کو خدا کی قوم ہونے کے لیے مخصوص کرنا. پھر جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں بھلے کوئی جتنا مرضی بڑا سیانہ ہو, بھلے کسی طرح کی بھی طریقے کی گفتوں کا قبضہ کیوں نہ ہو, بھلے وہاں پر آپ سے پہلے کتنے بھی بڑے لوگ کیوں نہ ہو, پر جب آپ کا تلوہ ٹکے گا اور وہ جگہ آپ کی ہوگی, وہ فضا آپ کی ہے, وہ ماحول آپ کا ہے, ان فضاؤں پر آپ کا روب ہے. اگر آپ کا روب فضاؤں پر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو یسوع مسیح کے دعوے دار کہنا یہ کوئی عام سی پھر بات ہے. جو یسوع مسیح کے دعوے دار ہے وہ فضاؤں پر, میں پلاٹ دا گل نہیں کرن دیا کہ کسی دے پلاٹ تے کھلو کے کو بھائی جی ہن میرا پیر ایتھے ہن میرا قبضہ ہے, میں اس پلاٹ دی گل نہیں کرن دیا, میں فضاؤں کی بات کرتا ہوں, روحانی عالم کی بات کر رہا ہوں. میں ان فضاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جہاں ناپاک تصویریں اور طریقے کی قوتیں ہوتے ہیں. ان کو ہم اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ گھر, اس کا ماحول, اس کی فضائیں خدا کے جلال کے لیے نامزد کر دی گئی ہیں, خدا کے جلال کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں. اس لیے اب اس فضا میں, اس ماحول میں تیرا کنٹرول نہیں بلکہ یسوع مسیح کا کنٹرول ہے. یسوع مسیح کا احساس یہاں پر رہے گا. اس لیے آپ میں سے بھی اگر آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں تو یہ بات معمولی نہیں. پہلے اپنے آپ نو نامزد کرنا تو پھر اس کار نو خدا دے جلال لئی نامزد کرنا, تاکہ ہماری نسلیں, ہماری پشتیں, ہمیں جن باتوں کی فکر ہے ان کے اندر ایسی روایات قائم کی جائیں کہ ان کو علم ہو کہ ہماری شکر گزاریاں, ہم جب کسی بات کے لیے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں تو ہم کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کریں. اس لیے کبھی اسے یہ مت سمجھا کریں کہ سربراہ جڑا ہے باہر ہی بیرو ہے, جس نے شکر گزاری رکھی ہے اس کا مذہب پر ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات کو جان سکے, اس بات کو قبول کر سکے. اور بزرگ داؤد نے بھی کہا کہ اب میرے گھرانے کو تو برکت دینا, یہ سدا تیرے روبرو قائم رہے گا. سدا روبرو قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا, یعنی تیرے گھر میں وہ تعلیم آ جائے گی جس تعلیم سے تو نجات پانے کے قابل ہوگا. ہاللیلویہ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس گھر کے لیے, اس عمارت کے لیے, اس بلڈنگ کے لیے, اور اس کے ہر ایک ایک کونے کو ہم خداوند کے جلال اور اس کی حضوری کے لیے مخصوص کرتے ہیں تاکہ اب سے کسی طرح کی بھی طریقے کی گفتوں کا اس کے ارد گرد میں کسی طرح کا اس ماحول اور فضا میں کنٹرول نہ رہے بلکہ خداوند کی حضوری اور اس کی پرستش اور اس کی ستائش کا کنٹرول رہے. آمین. ہم اپنے سروں کو جھکائیں.